Hello students, this is Dr. Vinod and you are watching YouTube channel VSK Easy Physics. In this video, we are going to solve important MCQs on a topic elastic and inelastic collision. We will cover only those questions which already asked in different entrance examination. So without wasting time, let us start one by one. First question, a ball is projected vertically down with an initial velocity from a height of 20 meter onto a horizontal floor. During the impact, it loses 50% of its energy and rebounds to the same height. The initial velocity of its projection is. Okay, so situation is like this one. Let us imagine that this is a horizontal surface. Okay, and this is that ball which is projected in downward direction with initial velocity v. It is given that. Okay, with initial velocity v, it is given. Okay, it is projected from a height h. Okay, so this is nothing but the h, which is equals to given that 20 meter. Okay, so at that moment when it is projected, its total energy should be equals to kinetic plus potential. Kinetic energy is due to its initial velocity. Potential energy is due to its position, which is kept at a height h. Okay, so total energy of that projectile when it is projected at that moment, it is equals to half m v square plus m g h, where half mv square it is a kinetic energy, mgh it is nothing but the potential energy. Okay, now when it is projected, it is just collide after some time with the floor. This collision, during this collision, it loses 50% of its energy. Okay, so when this projectile rebound, after rebound, it has energy which is equals to the 50% of this one then. Okay, so आफ्टर रिबाउंड ये जब ऊपर जा रहा है तो इसकी टोटल एनर्जी कितना होना चाहिए रिबाउंड के बाद, क्योंकि पहले कितना था 50 पहले कितना था हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी एच, लेकिन रिबाउंड होने के बाद वो रिबाउंड के प्रोसेस में कितना लूज किया उसने 50%. तो जब ये रिबाउंड होने के बाद ऊपर जा रहा है तो इसकी एनर्जी कितना होना चाहिए, सो इट इज इक्वल टू 50% ऑफ this total energy, that is equals to just write down total energy. Okay, this is the total energy which is equals to TE, total energy. तो total energy की 50% होना चाहिए. Okay, अब ये जा रहा है ऊपर, जैसे जैसे ऊपर जा रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी कम कम होते जा रही है, और जब वो उसी हाइट पे आएगा तो उस वक्त उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितना होना चाहिए mgh. यानी after rebound at this moment at this place, its total energy is nothing but this one, 50% of total after rebound when it is moving in the upward direction. जब वो यहाँ पे आएगा हाईएस्ट सेम हाइट पे रीच करेगा, उस वक्त उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होगा, तो उस वक्त उसमें उसकी जो भी पोटेंशियल एनर्जी होगा इट इज नथिंग बट द mgh. सो राइट डाउन दिस वन in terms of equation, the 50% of total energy it is equals to mgh. Here we can write, so 50% means 1/2 ब्रैकेट में टोटल एनर्जी इट इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी एच इट इज इक्वल्स टू 50% एम जी एच. ओके, विच इज इक्वल्स टू 1/4 एम वी स्क्वायर प्लस 1/2 एम जी एच इट इज इक्वल्स टू एम जी एच. ओके, सो यहाँ पे एम गेट कैंसल, ये इस साइड अगर जाएगा तो जी एच माइनस 1/2 जी एच, सो देयरफॉर इट इज इक्वल्स टू 1/4 एम वी स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू 1/2 जी एच. ओके, आफ्टर सॉल्विंग दिस we get the final answer which is equals to v square it is equals to twice gh, v is equals to under root of twice gh which is equals to under root of 2 into g की वैल्यू हम 10 लेंगे into h which is given it is equals to 20 meter. So after solving this it is become a 400
Okay, under root of 400 is equals to 20. Okay, so velocity it is equals to 20 meter per second. This is the answer. The option A is correct one. Next question. A body of mass 2 kg makes an elastic collision with another body at rest and continues to move in the original direction with 1/4 of its original speed. Okay, the mass of the second body which collide with the first body is. Okay, so यहाँ पे situation it is like this one. Let us imagine that this is the first body having the mass of m1. This is the second body having the mass of m2. Okay, so m1 it is given which is equals to 2 kg. m2 we have to find out. Again, given that the first body it is moving with initial velocity. Okay, let us imagine that that initial velocity is equals to u1. The initial velocity of this one which is nothing but the 0, therefore u2 become it is equals to 0. Okay, so after collision the velocity of this one become a 1/4 of this u1. So v1 it is equals to u1 upon 4. Okay, तो इसकी जो भी वेलोसिटी होगा उसको हम v2 कंसिडर करेंगे आफ्टर कोलिजन. ओके, और एक चीज यहाँ पे दिया है कि u1 का डायरेक्शन और v1 का डायरेक्शन सेम है एंड इस बॉडी का जो भी मोशन हो रहा है बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन सेम डायरेक्शन में इसका मोशन हो रहा है. ओके, सो वी हैव फार्मूला which relate these parameters. That formula is nothing but the v1 it is equals to m1 minus m2 upon m1 plus m2 into u1 plus twice m2 u2 upon m1 plus m2. ओके, लेकिन इसमें u2 की वैल्यू कितना है, 0 है, तो ये टर्म पूरा यहाँ से हट जाएगा. ओके, तो यहाँ पे v1 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1. लेकिन v1 के बारे में उन्होंने बताया कि इट इज इक्वल टू 1/4 ऑफ u1. सो हियर सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू, देयरफॉर u1 अपॉन 4 it is equals to, which is nothing but the v1, m1 minus m2 upon m1 plus m2 into u1. So u1 get cancelled, so therefore this is equals to 4m1 plus 4m2, it is equals to m1 minus m2. ओके, सॉरी यहाँ पे थोड़ा रॉन्ग हो चुका है. यहाँ पे this is equals to m1 plus m2, this is equals to 4m1 minus 4m2. okay, so we have the value of m1 which is given, which is equals to 2 kg. जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद यहाँ पे m1 की वैल्यू m2 की वैल्यू आएगा which is equals to 1.2 kg. Okay, so after solving this up to the value of this m1 which is equals to 2 kg, सॉल्व करने के बाद आपको ये आंसर मिल जाएगा. so m2 is equals to 1.2 kg. the option B is correct one. An inelastic ball is dropped from a height of 100 meter. Due to earth, 20% of its energy is lost. To what height the ball will rise? Okay, very easy question. यहाँ पे देखिए सिचुएशन कुछ ऐसा है. Let us imagine that this is a floor. Okay, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ड्रॉप कर रहे हैं हम h इतने हाइट से. ओके, और इनिशियल हाइट जो भी दिया है उन्होंने, इट इज इक्वल्स टू 100 मीटर. ओके, सो 100 मीटर इतना हाइट उन्होंने दिया है. तो इस हाइट से हम उसको ड्रॉप कर रहे हैं. ड्रॉप करने के बाद h इतने हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं. ड्रॉप करने के बाद ये जो भी ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट कोलाइड होने के बाद ये यहाँ तक आ रहा है. यानी कौन से हाइट तक आ रहा है, h डैश कंसिडर करते हैं. ओके, h डैश इतने हाइट तक आ रहा है. ओके, जब वो यहाँ पे था उस वक्त उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितना था, mgh. जब वो
इलास्टिक कोलिजन होने के बाद, इन इलास्टिक कोलिजन होने के बाद जब वो यहाँ तक आ रहा है तो उसकी एनर्जी कितना होना चाहिए, mgh डैश। ओके, अब इनका कहना है कि उसने एनर्जी कितना लॉस किया है, 20% यहाँ पे जब कोलिजन हो रहा था। ओके, अगर इसकी एनर्जी हम 100% कंसिडर करके चलते हैं, ओके, तो इसकी एनर्जी कितना है अभी, 80% होना चाहिए, क्योंकि 20% क्या हो चुका है, लॉस हो चुका है। ओके, तो अब इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं mgh डैश इट इज इक्वल्स टू 80/100 इंटू gh, सॉरी mgh। ओके, h की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 80/100 इंटू m, दोनों तरफ m है, दोनों तरफ g है, कैंसिल हो जाएंगे। ओके, सो मैं फिलहाल के लिए mg लिख देता हूँ इंटू 100, दिस 100 गेट कैंसल। ओके, सो h डैश, यहाँ पे mg गेट कैंसल, 100 गेट कैंसल, तो h डैश इज इक्वल्स टू 80। ओके, सो 80 मीटर, दिस इज द आंसर। सो ऑप्शन A is correct one. Next one, a body of mass 5 kg moving with a velocity 10 meter per second collides with another body of the mass 20 kg at rest and comes to rest. Okay, the velocity of the second body due to the collision is, okay, the situation is like this one. Let us imagine that this is the first body having the mass of 5 kg, इसको हम consider करते हैं m1. This is the second body having the mass of 20 kg having the mass m2 से represent करते हैं. Okay, so initial conditions, इसकी initial velocity, let us imagine that it is a u1, इसकी initial velocity it is u2. Okay, so after collision इसका जो भी फाइनल वेलोसिटी होगा, दैट वेलोसिटी लेट अस इमेजिन दैट इट इज इक्वल्स टू v1, और इसकी जो भी फाइनल वेलोसिटी होगा इट इज इक्वल्स टू v2. अब यहाँ पे बिफोर कोलिजन जो भी मोमेंटम होगा, आफ्टर कोलिजन जो भी मोमेंट होगा, दोनों की वैल्यू सेम होना चाहिए पूरे सिस्टम की. ओके, सिस्टम में कितने पार्टिकल्स है, 2, जिनका कोलिजन यहाँ पे हो रहा है. ओके, सो according to law of conservation of momentum, the initial momentum before collision or momentum before collision is nothing but the, इसका momentum कितना है, m1 u1 प्लस इसका momentum कितना है, m2 u2 before collision should be equals to momentum of the system after collision. So after collision इसकी velocity होगा v1, मास है m1, तो इस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम होगा आफ्टर कोलिजन इट इज इक्वल्स टू m1 v1, और इस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम होगा इट इज इक्वल्स टू m2 v2. ओके, अब यहाँ पे देखिए जो भी इंफॉर्मेशन दिया था उसके बेसिस पे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m1 5 kg, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m2 20 kg. ओके, सो फर्स्ट ऑब्जेक्ट इट इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, यानी v1 की वैल्यू, सॉरी u1 की वैल्यू ये होगा, कोलाइड विद द अनदर बॉडी ऑफ मास 20 kg एट रेस्ट, यानी u2 की वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया. ओके, u1 की वैल्यू कितना हो गया, 10 हो गया. ओके, एंड कम्स टू रेस्ट, यानी v1 की वैल्यू कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करना है v2. ओके, सभी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे. सो m1 की वैल्यू है 5, u1 की वैल्यू है 10, 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस m2 की वैल्यू है 20, लेकिन u2 की वैल्यू है 0, इट इज इक्वल्स टू m1 की वैल्यू है यहाँ पे 5, लेकिन आफ्टर कोलिजन दैट बॉडी बिकम रेस्ट, सो इसकी वेलोसिटी 0 प्लस यहाँ पे 20 मल्टीप्लाइड बाय v. ओके, सो ये होगा इस साइड 50, इट इज इक्वल्स टू 20v. सो अब हमें v फाइंड आउट करना है. सो देयरफॉर v इज इक्वल्स टू, दिस इंप्लाइज v इज इक्वल्स टू 50/20 विच इज 2.5 मीटर पर सेकंड. द ऑप्शन A इज करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, the quantities remaining constant in a collision are, first option momentum,
kinetic energy and temperature. Okay, second option is the momentum and kinetic energy but not temperature. Third option is the momentum and temperature but not kinetic energy, and last option is momentum but neither kinetic energy nor temperature. So as we know that there are two types of collisions are there. Elastic and inelastic. In case of elastic collision, the kinetic energy as well as momentum conserve. Okay, in case of elastic collision, kinetic energy और momentum दोनों conserve होते हैं, but in case of inelastic collision, only the momentum is conserve, not kinetic energy. Okay, तो काइनेटिक एनर्जी अगर चेंज होता है तो डेफिनेटली टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है. तो हमें डिस्कस करना है कि कोलिजन किसी भी टाइप का हो उसमें तो मोमेंटम तो हमेशा कांस्टेंट होता ही होता है. अब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा, इट्स डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ कोलिजन. Okay, if there is a elastic collision, then definitely kinetic energy is conserved, but if there is a inelastic collision, kinetic energy is not conserved. So therefore the option D is correct one, because in both the type of collisions momentum is always conserved. Okay, so यहाँ पे सिर्फ collision बोला है उन्होंने ये नहीं दिया है कि इलास्टिक की इनइलास्टिक. अगर इलास्टिक कोलिजन देते तो डेफिनेटली यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होता, लेकिन यहाँ पे जनरल स्टेटमेंट क्या है कि कोलिजन वक्त क्या कांस्टेंट होता है, तो आंसर है मोमेंटम ऑलवेज कंजर्व. ओके, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन. 4 स्मूथ स्टील बॉल्स ऑफ इक्वल masses at rest are free to move along a straight line without friction. The first ball is given a velocity of 0.4 meter per second. It collides head on with the second elastically. The second one similarly with the third, and so on. The velocity of the last ball is. Okay, very interesting question. यहाँ पे let us imagine that this is the situation. There are 4 balls which are kept on one horizontal surface. Let us imagine that this is that horizontal frictionless surface. Okay, इस surface के ऊपर यहाँ पे 4 balls हमने रख दिए like this one. Okay, अब चारों बॉल की जो भी मासेस है सेम है. इसका भी मास m है, इसका भी मास m है, इसका भी मास m है और इसका भी मास m है. ओके, अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, हम फर्स्ट जो भी बॉल है इसको हम कुछ वेलोसिटी दे रहे हैं, और कितनी वेलोसिटी दे रहे हैं 0.4 मीटर पर सेकंड. ओके, इतनी वेलोसिटी हम इसको दे रहे हैं फर्स्ट बॉल को, तो इन दिस डायरेक्शन. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले हम इन दोनों के बारे में बात करेंगे. ओके, अगर जो भी इसको वेलोसिटी दिया है हमने, ये बॉल इसके साथ कोलाइड होने वाला है, दोनों का मास सेम है. ओके, तो दोनों में जो भी वेलोसिटीज है इनिशियल बिफोर कोलिजन उनका एक्सचेंज होगा. तो ये बिफोर कोलिजन इसकी वेलोसिटी कितना है 0, इसकी वेलोसिटी कितना है 0.4. ओके, जैसे ही इन दोनों का कोलिजन होगा तो इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगा और इसकी वेलोसिटी होगा 0.4. तो ये ऑब्जेक्ट मूव होगा, क्योंकि जो भी कोलिजन हो रहा है दैट कोलिजन इज अ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन. ओके, और सेकेंडली सरफेस जो भी है वो फ्रिक्शनलेस है, तो एनर्जी लॉस वहाँ पे कहीं पे भी नहीं होगा. अब सेकंड को वेलोसिटी मिल चुका है 0.4 और इसको मिल चुका है 0. अब इस सेकंड मोशन में आएगा. ओके, तो सेकंड बॉडी और थर्ड बॉडी के बीच में कोलिजन होगा, सेम वेलोसिटीज एक्सचेंज होंगे, तो इसको 0.4 मिलेगा. उसके बाद इसके बीच में और इसके बीच में कोलिजन होगा, तो फाइनली तीनों ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ जाएंगे और ये मोशन में आएगा. इट इज मूविंग विद द वेलोसिटी, इट विल मूव विद द वेलोसिटी 0.4 मीटर पर सेकंड. ओके, सो यहाँ पे देखिए, इन दिस केस व्हाट हैपन, इन दिस केस वेलोसिटीज गेट एक्सचेंज. द लास्ट जो भी बॉल है उसकी वेलोसिटी कितना होना चाहिए 0.4 मीटर पर सेकंड. Two masses MA and MB moving with velocities VA and VB in opposite directions collide elastically. After that, the masses MA and MB moves with velocity VB and VA respectively.
द रेशियो ऑफ ma/mb इज, तो यहाँ पे देखिए वेलोसिटीज जो भी है वो एक्सचेंज हो रहा है। ओके, सो सबसे पहले ma पार्टिकल की वेलोसिटी कितना था बिफोर कोलिजन, इट इज इक्वल टू va। आफ्टर कोलिजन ma पार्टिकल की वेलोसिटी कितना है vb, और ये vb किसकी वेलोसिटी था, सेकंड ऑब्जेक्ट का बिफोर कोलिजन। ओके, सो यहाँ पे वेलोसिटीज जो भी है एक्सचेंज हो गए हैं। अब वेलोसिटीज अगर एक्सचेंज तभी होते हैं जब दोनों का मास, इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन, दोनों कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट्स का मास अगर सेम है तभी उनका वेलोसिटीज का एक्सचेंज होता है। ओके, तो इसके हिसाब से यहाँ पे ma/mb इन दोनों का रेशियो कितना होना चाहिए, 1, अगर दोनों मासेस सेम है तो जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया है उनके बेसिस पे दोनों का मास सेम आ रहा है, और देयरफॉर द आंसर इज दैट 1। और ये हमने थ्योरी में भी देखा था कि जब दोनों कोलाइडिंग पार्टिकल्स के मासेस सेम होंगे और उनका परफेक्टली हेड ऑन कोलिजन होगा, हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन, उस वक्त उनकी जो भी वेलोसिटीज है वो एक्सचेंज होंगे। ओके, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। नेक्स्ट वन, a body of mass m1 collide elastically with another body m2 at rest. There is maximum transfer of energy when the first option is m1 is greater than m2, second option is m1 is less than m2, third option is m1 is equals to m2, and fourth option is same for all values of m1 and m2। तो यहाँ पे इसका आंसर आना चाहिए कि जब दोनों का मास सेम होगा उस वक्त फर्स्ट बॉडी का जो भी काइनेटिक एनर्जी है पूरा का पूरा ट्रांसफर किया जाता है सेकंड बॉडी को जो रेस्ट पोजीशन पे है, जिसकी काइनेटिक एनर्जी 0 है। ओके, तो यहाँ पे पूरी की पूरी एनर्जी ट्रांसफर किया जाता है उसी वक्त जब दो ऑब्जेक्ट्स का मास सेम है। तो यहाँ पे इस केस में स्पेशली ऑप्शन सी करेक्ट आना चाहिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे हम दो ऑब्जेक्ट कंसिडर कर रहे हैं लाइक दिस वन, अगर ये रेस्ट पोजीशन पे है और ये मोशन में है तो इसकी जो भी काइनेटिक एनर्जी होगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग इट्स मोशन, सो ये कंप्लीटली ट्रांसफर करेगा इसको क्योंकि ये रेस्ट पोजीशन पे है। ओके, तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है, m1 इज इक्वल टू m2। नेक्स्ट क्वेश्चन, a bob A of a simple pendulum is released when the string makes an angle of 45 degree with the vertical. Okay, it hits another bob B of the same material and same mass kept at rest on table if the collision is elastic. Okay, this is the bob A which hold at an angle of 45 degree from the mean position. Okay, so इस बॉब में पोटेंशियल एनर्जी होगा। ओके, जैसे हम इसको रिलीज करेंगे तो डेफिनेटली ये कहाँ पे आना चाहिए, इस साइड आना चाहिए, लेकिन मेन पोजीशन पे और एक बॉब है यहाँ पे जिसका मास सेम है एज दैट ऑफ दिस वन, इट इज मेड अप ऑफ सेम मटेरियल एज दैट ऑफ दिस वन। ओके, जब ये इसके साथ कोलाइड होगा तो ऑप्शन यहाँ पे चाह दिए है बोथ ए एंड बी राइज टू द सेम हाइट, दोनों साथ साथ इधर आएंगे, नो पॉसिबल नहीं है। बोथ ए एंड बी बिकम रेस्ट एट बी, यानी ए आके यहाँ पे रेस्ट पोजीशन पे आ जाएगा, नॉट पॉसिबल। ऑप्शन ए, सॉरी, बोथ ए एंड बी मूव्स विद द सेम वेलोसिटी ऑफ ए, यानी ए की जितने वेलोसिटी था उसके साथ साथ वो दोनों जाएंगे इस साइड। ओके, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। द लास्ट वन वो करेक्ट होना चाहिए। A comes to rest and B moves with the velocity of A, डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे दोनों का मास सेम है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, तो यहाँ पे वेलोसिटीज का एक्सचेंज होगा। अगर वेलोसिटीज का एक्सचेंज हो रहा है तो इसकी जो भी वेलोसिटी था ये इसको मिल जाएगा आफ्टर कोलिजन, और ये रेस्ट पोजीशन पे आएगा क्योंकि ये पहले रेस्ट पोजीशन पे था। सो इन दिस केस ड्यू टू द same masses and due to the elastic collision velocities get exchanged. Okay, the option D is correct one. Last question, in the elastic collision of objects, first option is given only momentum remains constant, second option is only kinetic energy remains constant, third option both remains constant, and fourth option none of these.
सो यहाँ पे बात हो रही है इलास्टिक कोलिजन की। ओके, तो दो टाइप के कोलिजन होते हैं, इलास्टिक एंड इनइलास्टिक। जब इन इलास्टिक कोलिजन की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ मोमेंटम कॉन्जर्व होता है, काइनेटिक एनर्जी कॉन्जर्व नहीं होता है। लेकिन इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन मोमेंटम एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी दोनों कॉन्जर्व होते हैं। सो देयरफॉर द ऑप्शन सी ऑप्शन इज करेक्ट वन। ओके बच्चों, ये था हमारा आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जितना ज़्यादा शेयर हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।